Hello everyone. So today we will be starting with a new topic, that is Henry's law. So let's go ahead. So Henry's law क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करो. Let me first write the statement, then I'll explain. Henry law ने क्या कहा था? The partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the liquid solution, or you can simply write liquid or solution. Okay, so what does that mean? See, ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेंगे आपका, सपोज कर लीजिए ये आपका सोल्यूशन है. अब इसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होंगे. अभी ये क्या है, लिक्विड फेज में है पार्टिकल्स. अब कुछ पार्टिकल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर गेनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. Then what they do is they apply some pressure over here that we used to call as partial pressure of the gas. So ये जो pressure apply कर रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? Partial pressure of the gas. Since ये vapor phase में है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि vapor phase. Now what happens is, देखो ये कह रहा है कि जो pressure है that is directly proportional to the mole fraction. तो इस बात को समझने की कोशिश करो. देखो पार्टिकल्स जितने ज़्यादा अंदर सोल्यूशन के अंदर होंगे, मोर पार्टिकल्स इनसाइड द सोल्यूशन, उतने ही पार्टिकल क्या रहेंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाएंगे. जितने ज़्यादा आपका यहाँ पर अमाउंट रहेगी तभी तो वो एनर्जी गेन करके ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वेपर फेज में जा पाएंगे और प्रेशर इंक्रीज़ हो पाएगा. तो वो ये कहना चाहता है कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, एक तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी. नंबर 2, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल, यानी किस पे डिपेंड करते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा. सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. तो ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. लेकिन किसके अंदर, ये होगा आपका लिक्विड के अंदर, क्योंकि वो गैस जो है वो फ्री नहीं है, अभी वो किसके अंदर है, आपके लिक्विड के अंदर है. सो गैस इन लिक्विड. सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. नाउ अगर इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट मी राइट दिस. But before that, let me tell you, if you remove this proportionality constant, KH will be introduced and X will be there. So what does this KH represent? इसका मतलब होता है Henry's constant. ये proportionality constant को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब अगर इसको बहुत ही ज़्यादा simplified way में बोले Henry's law को, तो इसका मतलब होता है solubility of the gas in the liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with that liquid at that temperature. Now we will study about the relationship between KH and solubility of gases and liquid. So here we go. See, P is equals to KH into X. That is your KH is your Henry's constant
and X stands for your mole fraction of the gas in vapor phase. So see here what happens is, higher the KH, lower is the solubility of the gas in the liquid. तो X आपका यहाँ पे क्या represent करता है? That is the solubility of the liquid. Sorry, solubility of the gas in a liquid. Okay, now moving on to the next part. See, for oxygen and N2, KH value increase with the increase in temperature. That means what is happening? Solubility of the gas is decreasing with the increase in temperature. So what does that mean? Solubility of the gas decrease with the increase of temperature. Now this has got an application, that is one of the question is also there which usually comes in boards. So here we go with that question. The question is, why aquatic species are more comfortable in cold water than warm water? So answer to the question is, see, what is the meaning of cold water or warm water? So it's completely related to the temperature. Cold water means low temperature and warm water means high temperature. So here what happens is, if low temperature is there will be more solubility of gases. और कौन सी gases की बात हम कर रहे हैं? Oxygen gas. More solubility of gases in a liquid. Here less solubility will be there. So see what happens is, if there is a more solubility of gases in a liquid, then more availability of oxygen will be there. So in cold water, more availability of gases for aquatic species for their survival. क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डिज़ोल्व गैसेस हैं वो क्या होंगी? वो एस्केप आउट कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उनकी अवेलेबिलिटी जो है स्पीशीज़ को नहीं मिल पाएगी, यानी वो गैस जो है उन्हें नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से दे वोंट बी कंफर्टेबल. नाउ let's do some KH values. So KH for different gases. So I've taken the solvent as water and I'm performing the experiment at 20 degrees Celsius. So what happens is, these values were reported. So this is our Henry's law constant KH. This is the gas. And this is the solubility in water, that is, you can say mole fraction, or but we'll be saying it qualitatively only.
So 140, 75, 35. So 140 is for helium, this is for hydrogen, this is for oxygen. So what does this mean is 140 है यानी कि H की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी, सो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगी. सो वील राइट इनसॉल्युबल. यहाँ पर 75 है हाइड्रोजन के लिए, तो इट इज़ सॉल्युबल, but 35 is very lowest value, so this will be highly soluble. Okay, so basically the net complete अगर मैं summary बोलूँ तो ये होगी कि H value increase, mole fraction of the gas will decrease, and solubility of the gas in the solution will also decrease. So this is increase, this is decrease, this is again decrease. So that's all for Henry's law. Now we will be doing applications of Henry's law in the next class, that is in the next content. So let's begin with that. So today we will be starting with the applications of Henry's law. So let's start applications of Henry's law. So in applications of Henry's law, we need to study number 1, that is carbonated beverages. So let's study about that. In this, we'll be studying that how CO2 is dissolved, CO2 gas is dissolved at very high pressure and at low temperature. That means अभी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था that how CO2 gas is dissolved in liquids at a high pressure, how pressure has how pressure is affecting the solubility of gas in a liquid. So we have studied that pressure increase solubility of gas in a liquid also increase. So same एप्लीकेशन यूज़ किया गया है. जो भी हम पेप्सी वगैरह पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस इज़ प्रेजेंट. सो उसको बिल्कुल हाई प्रेशर में सील पैक किया जाता है एंड इट इज़ केप्ट एट लो टेम्परेचर. आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप पेप्सी पी रहे होते हो जो फ्रिज में होती है, जब ठंडी होती है तब आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है जब टेम्परेचर कम होता है तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है यानी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. सो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज solubility of gas in a liquid also increase. That is the reason कि gases are dissolved in a liquid at a high pressure and low temperature. So this is like effect of pressure is one of the most important part. Now the question is कि हम CO2 डालते ही क्यों हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर. what is the reason behind that? So see, why CO2 is present in cold drinks or soft drinks. अगर उनके अंदर गैस नहीं होगी तो इट इज़ like it will be very pale, like you will not get any taste in that case. So dissolved CO2 क्या होता है पहले तो समझने की कोशिश कीजिए. Dissolved CO2 is carbonic acid, that is H2CO3, which adds pleasant acidic flavor and interesting
माउथ फील। सो अगर हम CO2 नहीं डालेंगे तो आपको ना वो ड्रिंक पीने में अच्छी लगेगी। सो इसलिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, CO2 गैस डाली जाती है। अगर वो नहीं डालती है तो द ड्रिंक विल टेस्ट लाइक कम्प्लीटली फ्लैट। सो व्हेन it is not present, the drink tastes flat. That means उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। ओके, नाउ जब भी क्या करते हैं हम, वाटर सॉल्यूबल गैसेस डिजॉल्व मोर ईजिली इन कोल्ड देन इन हॉट वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या है, टेम्परेचर कम है, और हॉट वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। सो इस वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो नाउ we will proceed to the next application, that is deep sea diving. So let's start. डीप सी डाइविंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझो इसको। सी, व्हेन डीप इनसाइड द सी, जब भी आप सी के अंदर होते हो, बहुत ज़्यादा डीप, व्हेन डीप इनसाइड द सी, द प्रेशर इज़ हाई, यानी कि सबसे ज़्यादा अंदर, सबसे ज़्यादा नीचे जब आप होंगे सी के, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। द प्रेशर इज़ high, then solubility of gas in blood also increases, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो गैसेस है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो आप गैसेस लेकर अपने साथ कैरी करते हो, जब व्हेन यू मूव इनसाइड द सी, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है डीप लेवल्स पे। तो प्रेशर क्या हाई होने की वजह से सॉल्युबिलिटी द गैस इन ब्लड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो व्हेन पर्सन कम्स ऑन द सर्फेस, देन व्हाट हैपन्स? सी, व्हेन person comes on the surface, pressure decreases, क्योंकि डीप इनसाइड क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया जब आप सरफेस पर आते हो। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा था तब सॉल्युबिलिटी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी, बट अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज ऑन लाइक व्हेन वी आर मूविंग डाउन। बट व्हेन प्रेशर जब आपका ज़्यादा है तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन जब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ होगा तब आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो gas releases and causes formation of bubbles of nitrogen and other gases। तो जैसे ही आपकी बॉडी से गैसेस बाहर आनी शुरू होंगी, तो जितनी ईजीली वो डिज़ोल्व हो रही थी उतनी ईजीली ये बाहर नहीं निकलती हैं, तो इट कॉजेज़ लाइक बबल्स, तो आपको नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो causes the formation of bubbles of nitrogen and other gases, which affects nerve impulses and give rise to sickness और bends, जो कि क्या होता है, पेनफुल होता है, which is painful। So bends क्या होता है, bends is basically a nervous decompression when the solubility of the gases decrease in the blood। So what is the meaning of bends? Bends is nervous decompression when solubility of gases in blood
decreases. So moving on to the next part. Ab, in order to prevent this, what should we do? How we can prevent this? So what happens is, जो sea divers होते हैं जो अंदर जाते हैं, they carry the helium instead of nitrogen. So deep sea diver use helium in place of nitrogen because हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन. तो आपकी ब्लड में सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट हैज़ वेरी लो solubility in blood और इन एनी बायोलॉजिकल फ्लूइड, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से आपको वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता लेटर ऑन. सो लेट मी टेल यू द कॉम्पोजिशन जो स्कूबा डाइवर्स कैरी करते हैं. सो प्लीज़ नोट दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. जनरली scuba divers use the air tank filled with 11.7% of helium, 56.2% nitrogen and 32.1% of oxygen. While going deep inside the sea. Now we are proceeding to the third application, that is high altitude sickness. So, high altitude sickness. So let's start. See what happens at high altitude sickness. At high altitudes जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो काफ़ी कम होता है. सो एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर प्रेशर कम है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है. Therefore, concentration of dissolved oxygen in our blood and tissues decreases. इसके कम हो जाने की वजह से क्या होगा, लोगों को प्रॉब्लम आती है ब्रीथ करने में. Dissolved oxygen in our blood and tissues decreases, hence people suffer from anoxia. इसमें क्या होता है, लोगों को वीकनेस फील होती है, दे कैन थिंक प्रॉपरली, दे कैन ब्रीथ प्रॉपरली. सो in this people suffer from weakness and inability to think properly. So this was our third application, that is high altitude sickness. So basically इसका मतलब सिंपल है कि जब भी आप पहाड़ी इलाके में जाते हो या जब आप ऊपर की साइड जा रहे होते हो तो प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम हो जाती है, यानी हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलता है, जिस वजह से आपका क्या होता है, सांस फूल जाती है, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है. तो यही वजह होती है
सो पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सफ़र फ्रॉम एनॉक्सिया, जिसमें क्या होता है उनको बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पूरी जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में हमें नहीं मिलता है. सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि आप ऊपर जाकर जो बीमार हो जाते हो, तो उसका रीज़न यही होता है. नाउ सी, इसका एक एप्लीकेशन हमारी बॉडी में भी होता है. वो क्या है, देखो, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस इनटू लंग्स, तब क्या होता है, प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा हाई होता है. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई इन लंग्स. तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, हैज़ हाई एफिनिटी टू बाइंड ऑक्सीजन at high pressure, then it takes it to tissues where pressure is low, टिश्यूज़ पर प्रेशर जो होता है वो लो होता है. अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है, हाई प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी थी हाइड्रोजन को पकड़ने की. फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कहाँ पे लेकर जाता है, हमारे टिश्यूज़ के पास लेके जाता है, और टिश्यूज़ के पास उसकी एफिनिटी जो होती है लो होती है. तो लो एफिनिटी पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं पकड़ सकता, तो वो क्या करता है, टिश्यूज़ के पास ही उसको छोड़ देता है. सो एट लो प्रेशर, अब लो प्रेशर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए. मायोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. तो जैसे ही हीमोग्लोबिन छोड़ता है उसको कौन पकड़ता है, मायोग्लोबिन, फॉर ऑक्सीजन. हेंस ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड from hemoglobin to myoglobin. So that's how things work out. अब क्या होता है, myoglobin, it takes it to tissues, muscles, where it is stored and used up when it is required, and when it is used up it is converted into CO2. So see how process takes place. अभी क्या हुआ है, लंग्स के अंदर क्या था, CO2. हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी ने क्या की वजह से क्या हुआ, उसने बाइंड किया ऑक्सीजन को. उसके बाद वो उसके कहाँ लेके गया, टिश्यूज़ के पास. टिश्यूज़ के पास क्या था, प्रेशर वॉज वेरी लो देयर. ड्यू टू लो प्रेशर क्या होता है, हीमोग्लोबिन लीव्स दैट ऑक्सीजन. नाउ अब ऑक्सीजन को कोई तो लेगा वहाँ जाके. तो क्या होता है, एट लो प्रेशर मायोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट नियर टू द टिश्यूज, सो दैट इज गोइंग टू टेक अप दैट ऑक्सीजन विच वॉज अर्लियर बाइंड बाय हीमोग्लोबिन. Then that oxygen is transferred from hemoglobin to myoglobin. Then later on what happens is myoglobin takes it to tissues, takes it किसको, ऑक्सीजन को. So please be very careful. Myoglobin takes it to tissues, muscles, where it is stored and used up when required. तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है जब तक कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है. एंड देन लेटर ऑन जब हमारी बॉडी ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया है तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद वो जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, CO2 में. सो व्हेन इट इज़ यूज्ड अप it is converted to CO2, which is again taken up by hemoglobin. ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
वो उसे वापस हमारे लंग्स में लेकर आएगा और हम एक्सेल कर देंगे, विच टेक्स इट बैक टू लंग्स एंड वी एक्सहेल इट आउट। सो ये पूरा कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ we will be studying about various terms, that is dissolution, crystallization and equilibrium, how saturated solution is formed. So we'll be doing that in next class. Thank you so much everyone. Take care of yourself and please keep on studying on daily basis. If any doubts are there, you can post it on the comment section as well. Thank you so much.